بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل، ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، پوری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ یار دوستو، اللہ رب العزت نے جتنا مقام اپنی تمام مخلوق کے اندر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اتنا مقام کسی اور کو نہیں بخشا۔ اس مقام تک آج تک نہ کوئی نبی پہنچ سکا ہے، نہ کوئی فرشتہ۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا اندازہ کل قیامت کے دن ہوگا، جب تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خصوصیات سے نوازا، وہیں پر ایک خاصیت جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ درود شریف ہے۔ اس میں نہ کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہے اور نہ کوئی فرشتہ، جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاصہ ہے۔ یاد رہے کہ درود شریف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے۔ مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو درود و سلام کے فضائل بتائیں گے، درود پاک پڑھنے کا اجر کیا ہے، اس کے دنیا اور آخرت کے فوائد کیا ہیں، مکمل تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات بیان ہوئے ہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں دیا ہے۔ درود و سلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے درود و سلام کے چند فوائد ملاحظہ فرمائیں جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، اور درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیضیاب کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے درود و سلام کی کثرت کی جائے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ درود و سلام روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی آلائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ اے دوستو، کتنا آسان وظیفہ ہے، جو لوگ تزکیہ نفس کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں، اس سے ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ دوستو، درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، بلکہ خال خال ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعے کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ میرے دوستو، کون مسلمان ایسا ہوگا کہ جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو؟ اگر آپ کی بھی یہ خواہش ہے تو پھر حدیث میں بیان کردہ اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ درود و سلام کا ورد رحمت خداوندی کا خزانہ ہے۔ جو شخص خلوص دل سے درود و سلام کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب کی صرف تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانے سے مال و مال کر دیتا ہے،
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। दोस्तों, आज हर कोई अल्लाह की रहमत का तालिब है, लेकिन अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए इस आसान अमल से नावाकिफ है। कितना आसान अमल है कि एक बार दरूद पाक पढ़ा और अल्लाह की 10 रहमतें हासिल कर ली। बल्कि अक्सर लोग इस फजीलत से वाकिफ होने के बावजूद भी दरूद पाक पढ़ने की जहमत नहीं करते। दोस्तों, यही नहीं बल्कि दरूद व सलाम गुनाहों की बख्शिश का जरिया भी है। याद रहे कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। उसकी रहमत बंदों की बख्शिश के बहाने तलाश करती रहती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना भी यूं ही बख्शिश के बहानों में से एक है। जैसा कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखने वाले दो बंदे एक दूसरे से मिलते हैं और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो एक दूसरे से अलहदा होने से पहले उनके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अरे दोस्तों, इसके अलावा दरूद व सलाम दुनिया के गमों का मदावा है। जैसा कि हज़रत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दरूद पढ़ता हूँ, मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा आप पर दरूद के लिए मुकर्रर करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम पसंद करो। मैंने अर्ज़ किया, एक चौथाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन अगर कुछ और बढ़ा दो तो बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, क्या आधा हिस्सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन अगर कुछ और बढ़ा दो तो बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, दो तिहाई? फरमाया, इसमें भी इजाफा कर दो तो बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, मैं अपनी सारी दुआ का वक्त आप पर दरूद के लिए वक्फ कर दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तेरा हर गम दूर होगा और हर गुनाह माफ कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज हर इंसान गमों में, परेशानियों में फंसा हुआ है, लेकिन अपने गमों को दूर करने के लिए हमारा जहन इन इबादात की तरफ नहीं जाता। हालांकि इस हदीस में वाज़ेह फरमा दिया कि दरूद पाक की कसरत करने वाले के गम दूर हो जाएंगे, और यही नहीं बल्कि गुनाह भी माफ कर दिए जाएंगे। दोस्तों, याद रहे कि दरूद व सलाम कबूलियत दुआ का जरिया भी है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं नमाज पढ़ रहा था और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ वहाँ मौजूद थे। जब मैं नमाज पढ़कर बैठ गया तो पहले मैंने अल्लाह ताला की हम्दो सना की, फिर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा, फिर अपने लिए दुआ मांगी। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांग तुझे अता किया जाएगा, मांग तुझे अता किया जाएगा। यार दोस्तों, रिवायात के मुताबिक दरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला खुद दरूद भेजता है। दरूद व सलाम पढ़ने की बरकत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरूद पढ़ने वाले पर खुद दरूद भेजता है। इस हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे खुशखबरी सुनाई कि आपका परवरदिगार फरमाता है, जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है, मैं उस पर दरूद पढ़ता हूँ, और जो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज करता है, मैं उस पर सलाम भेजता हूँ। सुभान अल्लाह। अरे दोस्तों, कैसी अजीम इबादत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वाले पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। और सिर्फ रहमत ही नाजिल नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला उस बंदे पर दरूद भेजते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने वाले पर अल्लाह ताला सलामती भेजते हैं। दोस्तों, याद रहे कि दुरूद पाक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला यूं फरमाता है, खुदा और उसके फरिश्ते पैगंबर पर दरूद भेजते हैं, मोमिनो तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। अरे दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो अल्लाह ताला ने तमाम इबादतों के बारे में अपने बंदों को इबादत करने का हुक्म फरमाया है, और दरूद के बारे में पहले बनफ्स नफीस इस अमल के करने का जिक्र फरमाया, फिर उस पर फरिश्तों के मामूर होने का जिक्र किया। उसके बाद मोमिनों को हुक्म दिया कि तुम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। इससे मालूम होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना तमाम इबादत से अफजल है, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं और मेरे फरिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अरे दोस्तों, इस आयत की मुकम्मल तफसीर और तफसील आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको दरूद पाक के मजीद फ़ज़ाइल बताते हैं जो अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। बल्कि रिवायात के मुताबिक 10 गुनाह भी माफ़ होते हैं और 10 दर्जात भी बुलंद कर दिए जाते हैं।
जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। अरे दोस्तों, ज़रा सोचें कि दुरूद पाक पढ़ने पर कितना वक्त लगता है। 1 सेकंड 2 सेकंड की इबादत है, लेकिन इसकी फजीलत कितनी अजीम है। लेकिन अफसोस के इन फ़ज़ाइल के बावजूद भी हम लोग दरूद पाक की बरक़ात हासिल नहीं करते। ये हमारी कम नसीबी नहीं तो क्या है। हज़रत अबू दुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सुबह के वक्त 10 मरतबा और शाम के वक्त 10 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है, उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ात नसीब होगी। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात हासिल करने का कितना आसान तरीका है कि 10 मरतबा सुबह के वक्त और 10 मरतबा शाम के वक्त दरूद पाक पढ़ लिया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब हो जाए। लेकिन अफसोस कि आज हमारी ज़िंदगियां गफलत में गुजर रही हैं। हम आखिरत को भूले हुए हैं, आखिरत की तैयारी को भूले हुए हैं। वरना जो लोग आखिरत को सामने रखकर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो दिन रात ऐसे अमाल की तलाश में रहते हैं जिनसे उनको आखिरत की कामयाबी मिल जाए और जिनसे उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब हो जाए। दोस्तों, हर मुसलमान की यह ख्वाहिश है कि क़यामत के दिन उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब हो। लिहाजा आज ही से इस हदीस पर अमल शुरू करें, खुद भी इस हदीस पर अमल करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात कामिला नसीब फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, इमाम इब्ने अबी दुनिया और नमीरी ने किताबुल अलाम में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि आदम अलैहिस्सलाम को ठहराया जाएगा। अर्श के करीब एक कुशादा जगह में उन पर 100 सब्ज़ कपड़े होंगे, गोया कि वो बोसीदा कपड़े हैं। और आप देखेंगे कि उस शख्स की तरफ जो उनकी औलाद में जन्नत की तरफ जाएगा, और देखेंगे उस शख्स की तरफ भी जो उनकी औलाद में से दोज़ख की तरफ जाएगा। इस दरमियान के आदम अलैहिस्सलाम उसी जगह पर होंगे। क्या आपकी नज़र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक शख्स पर पड़ेगी जिसको दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे, तो आदम अलैहिस्सलाम आवाज़ देंगे, ए अहमद, ए अहमद। वो फरमाएंगे, मैं हाजिर हूँ ए बशर के बाप। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ये आदमी तेरी उम्मत में से है, इसको दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। बस मैं अपनी चादर को मजबूत करते हुए फरिश्तों के पीछे जाने में जल्दी करूंगा और मैं कहूंगा, ए मेरे रब के खासिदो, ठहर जाओ। वो कहेंगे, हम गजबनाक और ताकतवर हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और हम वही करते हैं जो हमको हुक्म दिया गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से मायूस हो जाएंगे तो अपनी दाढ़ी मुबारक को अपने बाएं हाथ से पकड़कर अर्श इलाही की तरफ अपना चेहरा फेर लेंगे और फरमाएंगे, ऐ मेरे रब, आपने मुझसे वादा फरमाया था कि मैं तुझको तेरी उम्मत के बारे में रुसवा न करूंगा। तो अर्श के पास से एक आवाज़ आएगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और इस आदमी को अपने मकाम की तरफ वापस लौटा दो। फिर मैं अपनी चादर बांधने की जगह से औरों की मिसल एक सफ़ेद कागज़ का पुर्जा निकालूंगा और उसको तराजू के दाएं पलड़े में डालूंगा और कहूंगा, बिस्मिल्लाह। तो उसकी नेकियां भारी हो जाएंगी बुराइयों पर। तो आवाज़ दी जाएगी, ये नेक बख्त हो गया है और इसका दादा भी नेक बख्त है और इसका तोल भारी हो गया, तुम इसको जन्नत की तरफ ले चलो। फरिश्ते उसको जन्नत की तरफ ले जाएंगे और वो कहेगा, ऐ मेरे रब के कासिदो, ठहर जाओ, यहाँ तक कि मैं सवाल करूं उस करीम बंदे के बारे में अपने रब से। और वो कहेगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, कैसा ही अच्छा आपका चेहरा है और क्या ही अच्छा आपका इखलाक है। आप कौन हैं कि आपने मेरे गुनाहों को मेरे लिए कम कर दिया। आप फरमाएंगे, मैं तेरा नबी मोहम्मद हूँ और ये तेरा दरूद है जो तूने मुझ पर भेजा था और मैं तुझ पे आसान कर रहा हूँ जिसका तू ज्यादा हाजतमंद है। यार दोस्तों, ये रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के हवाले से है कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन उम्मतियों पर दरूद पढ़ते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना शफात फरमाएंगे तो दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हो सके दरूद पाक पढ़े। यार दोस्तों, एक रिवायत में बयान है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमा के दिन 100 मरतबा दरूद पढ़े तो वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका चेहरा नूर से रोशन होगा और लोग कहेंगे, इसने ऐसा कौन सा अमल किया था। सुभान अल्लाह, कैसी अजीम बरकत है दरूद पाक की। ये क़यामत के दिन दरूद पाक पढ़ने वाले के चेहरे पर खास नूर होगा। दोस्तों, कंजुल माल की एक और रिवायत है कि जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़े दिन में 1000 मरतबा तो वो नहीं मरेगा जब तक कि फरिश्तों से खुशखबरी पाए जन्नत की। इसी तरह जामिउल हदीस की रिवायत है कि जो शख्स दरूद पढ़े मुझ पर दिन में 100 मरतबा तो अल्लाह उसकी 100 ज़रूरतें पूरी करेगा, 70 आखिरत से और 30 इस दुनिया की। और कंजुल अमाल की एक और रिवायत यूँ नकल की गई है कि जो शख्स दरूद पढ़े मुझ पर जुमा के दिन 100 मरतबा
تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کے ساتھ نور ہوگا۔ اگر وہ نور پوری مخلوق کے درمیان تقسیم کیا جائے تو وہ نور ان کو گھیر لے گا۔ میرے دوستو، درود پاک کے حوالے سے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن پر زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ احادیث میں بیان کیے گئے ان اعمال کا اہتمام لازمی کریں۔